Hey guys, welcome to my channel Funda of Agronomy. I'm your tutor Sakhi, and today we'll study rice cultivation. So the we will cover rice crop in 7 to 8 lectures. So this is the first introductory lecture of rice. So let's move forward. So in rice, first we have to we should know the botanical name of rice, that is Oryza sativa. There are two cultivated species we'll discuss later on. So this is Oryza sativa, which is known as एशियन राइस, जिसे हम एशियन राइस कहते हैं, एंड दूसरी जो है वो ओराइजा ग्लैबरेमा, ओके, जिसे हम अफ्रीकन राइस कहते हैं. एंड द फैमिली ऑफ राइस इज़ ग्रैमिनी, और उसका दूसरा नाम पोएसी भी है. तो बोथ द फैमिली, द ग्रैमिनी वाज द previous name, which now we commonly know it by poaceae. Okay, and then when we talked about subfamily is Bambusoideae, and origin is Myanmar regions, and we can also term it as Southeast Asia. Okay, the southeast part of the Asia is the Indo-Myanmar regions. Okay, don't get confused when it comes like Indo-Myanmar is the right or Southeast Asia is right. Okay, both are the correct answers, but just the names are different. Okay, the chromosome number, when it comes to chromosome number, to 2n is equals, it is a diploid, and 2n is equals to 24. Okay, and the nutrient, when we talk about nutrient content, तो प्रोटीन परसेंटेज जो होता है राइस में वो होता है 6 to 7%, फैट होता है 2 to 2.5%, एंड लो अमाउंट ऑफ कैल्शियम इज ऑल्सो फाउंड. एंड सेल्फ पॉलिनेटेड मीन्स कि एक फ्लावर में ही मेल और फीमेल दोनों होंगे, और जो फीमेल है वो उसी फ्लावर के मेल से पॉलिनेटेड होगी. ओके, इट इज़ अ शॉर्ट डे प्लांट. शॉर्ट डे प्लांट्स मीन इट रिक्वायर लेस देन 8 hours फॉर फ्लावरिंग. मतलब ऐसे दीज आर शॉर्ट डे प्लांट जो जिनके लिए फ्लावरिंग के लिए नाइट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन डे लेंथ. सो इट रिक्वायर्स लेस देन 8 hours, एंड इट इज़ अ C3 प्लांट. इसमें C3 साइकिल चलती है. Then let's move forward. Institutes are very important to study. When we are studying different crops, we should know the institutes, even the institute related to that crop in world and in India also. So let's study first in world, the institute that are in world. So the most famous institute is International Rice Research Institute, which is at Las Banos, Manila, Philippines, and it was established in 1960. Okay, then we should know the institutes which are in India. So first we'll study the Central Rice Research Institute, CRRI, which is located at Cuttack, Orissa, and it was established in 1946, and it was renamed as NRRI, National Rice Research Institute, in 1966. So we should know the current name also and the previous name also. Okay, the question can be asked by previous name or by current name. So we should know कि पहले कौन सा नाम था और अभी कौन सा नाम है. ओके, and then AICRIP, which is All India Coordinated Rice Improvement Project, जो कि स्टार्ट किया गया था राजेंद्र नगर, which was established in 1965, और ये कहाँ पे, हैदराबाद में. इसका नाम फिर से रीनेम किया गया है. वो अभी क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, IIRR. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. Then we should know area and distribution. Okay, so rice is a staple food, is a most important food. मतलब पूरे विश्व में, वर्ल्ड में, इंडिया में, हर जगह राइस एक staple food है, very important food. Okay, so 60% of the world population is dependent on rice. Okay,
और साउथ इंडिया और जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं लाइक वेस्ट बंगाल, यहाँ पे राइस का जो कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा होता है एंड प्रोडक्शन भी वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर हम वर्ल्ड राइस की बात करें तो 90% वर्ल्ड्स राइस इज़ ग्रोन एज वेल एज प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड इन एशिया। एशिया में 90% जो राइस है वो प्रोड्यूस होती है और कंज्यूम होती है, ओके। इंडिया इन इंडिया राइस इज़ द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एक्सटेंसिवली ग्रोन फूड क्रॉप। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाला फूड क्रॉप है इंडिया। राइस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप इन इंडिया, ओके। अगर हम एरिया की बात करें वर्ल्ड में तो इट इज़ 164.19 मिलियन हेक्टेयर एरिया इन वर्ल्ड राइस एरिया, एंड जिसमें से 140.46 मिलियन हेक्टेयर जो है वो एशिया में है। दिस इज़ द डेटा ऑफ 2020, ओके। सो it gets changed with time, okay. So we should know the current data. It is the most current data 2020. And then when we talk about the top producers in world, so China is the first top producer, like सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन राइस का चाइना में होता है, उसके बाद फॉलोड बाय इंडिया। बट यहाँ पे एक चीज़ देखने की बात है कि चाइना में कंपेयर टू इंडिया राइस कम एरिया में ग्रो की जाती है। मतलब अगर एरिया वाइज देखें तो इंडिया रैंक्स फर्स्ट, बट द प्रोडक्शन वाइज देखें तो चाइना रैंक्स फर्स्ट in world, okay. So why India ranks second in production while the area is more than China? Due to some practices which they follow and we do not, okay. So productivity India की कम है क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा अभी धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं तो हम ट्रेडिशनल तरीक़ों से ही खेती करते हैं अपनी, ओके। तो ये है जो टेक्नोलॉजीज़ है चाइना में ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ है, इरिगेशन की फैसिलिटीज़ है, एवरीथिंग, फर्टिलाइज़र एंड ये सब सारी फैसिलिटीज़ के कारण चाइना में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है कंपेयर टू इंडिया, ओके। प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है एक्चुअली वहाँ पे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। फिर आते हैं कल्टिवेटेड स्पीशीज़ में, ओके। तो जो जीनस ओराइज़ा है उसमें 24 स्पीशीज़ हैं, टोटल स्पीशीज़ इज़ 24, जिसमें से 2 कल्टिवेटेड हैं और वो है ओराइज़ा सटाइवा एंड ओराइज़ा ग्लैबरेमा। जो फर्स्ट पिक्चर लगाई है मैंने वो एशियन राइस दैट इज़ ओराइज़ा सटाइवा। इसके जो आपको वो दिखेंगे ग्रेन्स दिखेंगे वो थोड़े लंबे हैं, हाइट विल बी, द लेंथ ऑफ द प्लांट विल बी हाई, ओके, ज़्यादा होगा। एंड द सेकेंड पिक्चर इज़ ऑफ अफ्रीकन राइस दैट इज़ ओराइज़ा ग्लैबरेमा, ओके। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट ओराइज़ा सटाइवा, ओके। ओराइज़ा सटाइवा को हम क्या कहते हैं? एशियन राइस, बिकॉज दिस राइस इज़ ग्रोन इन एशिया रीजन, ओके। Most of the Asia region are like in Asia, Oryza sativa is grown, cultivated, okay, and it is diploid. Its chromosome number is 2 and is equals to 24, and there are 3 subspecies which come under Oryza sativa, okay. The first is Oryza sativa indica, the second is Oryza sativa japonica, and the third is Oryza sativa javanica, okay. Let's move forward. So we'll first study Oryza sativa indica, the characters of Oryza sativa indica, okay. So as the name suggests, indica, it means it will grow in India, okay. So grown throughout tropics and subtropics of India is the Oryza sativa indica, and it is tall stature, matlab the length of the plant will be more टॉल होगा प्लांट, वीक स्टेम होता है। अब ऑब्वियस से बात है, अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो वीक स्टेम होगा, ओके, लॉजिंग की समस्या ज़्यादा होगी। ड्रूपी लीव्स होगी, ड्रूपी लीव्स मतलब कि नीचे की तरफ मुड़ी हुई या झुकी हुई, ओके। एंड हाई टेलरिंग विल बी देयर, ज़्यादा टेलर्स निकलेंगे उसमें। अभी हम जानेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में कि टेलर्स क्या होते हैं। इसमें जो लीव्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा निकलती हैं, ओके। इररिस्पॉन्सिव टू हाई इनपुट, मतलब हाई फर्टिलाइज़र, इरिगेशन और मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करने के बाद भी इट्स नॉट दैट मच रिस्पॉन्सिव, ओके। इररिस्पॉन्सिव मीन्स उसका ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होगा, हम ज़्यादा मैनेजमेंट अच्छा करेंगे उसके बाद भी उसके उस मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन नहीं होगा, ओके। एंड दिस इज़ लेट मैच्योरिंग, मतलब इट इज़ अ लॉन्ग ड्यूरेशन, it takes long time to get matured, okay. Then comes the Oryza sativa japonica, okay.
Oryza sativa japonica, Japan. It's the japonica name we can directly get that it's related to Japan. Okay, so grown in temperate and subtropical regions of Japan, and it is short stature. Short stature मतलब कि the length of the plant will be less. If the length of the plant will be less, then sturdy stem. Sturdy मतलब मजबूत स्टेम होगा, तो यहाँ पे लॉजिंग की समस्या नहीं होगी. अब लॉजिंग क्या होता है? लॉजिंग क्या होता है? जब बरसात या ओले गिरते हैं या विंड बहुत स्पीड से चल रही है, तो प्लांट जो है वो ज़मीन पे गिर जाते हैं पूरी तरह से. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. ओके, सो अगर जब स्टेम मजबूत होगा, तो अगर विंड की स्पीड को वो टॉलरेट कर जाएगा, तो प्लांट जो है वो ज़मीन पे ऐसे धराशायी नहीं हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ जापोनिका. देन कम्स द नैरो, इरेक्ट एंड डार्क ग्रीन लीव्स होती हैं. फिर आते हैं रिस्पॉन्सिव टू इंटेंसिव क्रॉप मैनेजमेंट. मतलब अगर यहाँ पे हमने प्रॉपर क्रॉप मैनेजमेंट किया, इंटेंसिव क्रॉप मैनेजमेंट किया, प्रॉपर फर्टिलाइज़र अप्लाई किया, प्रॉपर मतलब इरिगेशन दिया, एवरीथिंग प्रॉपर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमने बेस्ट मैनेजमेंट दिया, तो उसका रिस्पॉन्स भी, प्रोडक्टिविटी भी उतनी ज़्यादा होगी और प्रोडक्शन हमारा बहुत ज़्यादा होगा. ओके, एंड ये अर्ली मैच्योरिंग है, मतलब इट रिक्वायर्स लेस टाइम, लेस मतलब मैच्योर होने के लिए कम दिन लगते हैं इसे. ठीक है, एंड इसे हम, उसका दूसरा नाम क्या है? ब्लू राइस. ओके, यहाँ पे साइड में आप पिक्चर देख सकते हैं. जो जापोनिका राइस है वो थोड़ा मोटा है एंड छोटा है. ठीक है, और ऊपर ही जो हमने ऊपर देखा है, जो ऊपर पिक्चर है वो क्या है? ओराइजा सटाइवा इंडिका. उसकी जो लेंथ ऑफ जो ग्रेन है वो लंबा है. ओके, आगे हम और देखेंगे दोनों के बीच में प्रॉपर डिफरेंस भी है, एक फ़ोटो मैंने लगाई है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. या अब आते हैं ओराइजा सटाइवा जवानिका. ओके, दिस सब स्पीसीज इज़ ग्रोन इन इंडोनेशिया. ओके, इसमें कम टेलर्स आते हैं, इसका टॉल स्टेचर होता है, स्टर्डी स्टेम मतलब मजबूत स्टेम है, लॉन्ग पैनिकल्स होते हैं, लॉन्ग बोल्ड ग्रेन्स होते हैं इसमें. ठीक है, अब जवानिका को समझ सकते हैं कि कुछ कैरेक्टर्स जवानिका के हैं और कुछ कैरेक्टर्स इसमें इंडिका के हैं. ठीक है, लाइक टॉल स्टेचर हमने पढ़ा था कि इंडिका में टॉल स्टेचर था, और स्टडी एंड स्टेम हमने पढ़ा कि जापोनिका में था. ओके, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, और कैरेक्टर्स आपको याद होने चाहिए, और ये ग्रो कहाँ किए जाते हैं ये भी आपको याद होना चाहिए. ओके, प्रोडक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी जो है वो जापोनिका की है. अब प्रोडक्टिविटी क्या होती है? प्रोडक्टिविटी मतलब प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया. मतलब अगर हम बात करें, अगर हमारे पास यूनिट एरिया 1 हेक्टेयर है, तो 1 हेक्टेयर में हमारा एक पर्टिकुलर सब स्पीशीज़ की प्रोडक्टिविटी क्या है. तो जैसे मान लो, तो अगर हम एग्जाम्पल से लेके चलें, तो जैसे अगर हम जापोनिका की माने, तो जापोनिका की है 10 kg पर हेक्टेयर. ओके, 10 kg पर हेक्टेयर जापोनिका की होगी. सिर्फ हम मान रहे हैं. ओके, वी आर जस्ट अज्यूमिंग, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हो. एंड जापोनिका की 5 kg होगी पर हेक्टेयर, सेम मैनेजमेंट उस पर एंड सेम क्लाइमेट पे. और इंडिका की होगी 2 kg. मतलब कि प्रोडक्टिविटी किसकी ज़्यादा है? जापोनिका की, फिर जवानिका की, फिर इंडिया की. ओके, या देन यहाँ मैंने एक फ़ोटो पेस्ट की है. इसमें देखो ओराइजा सटाइवा सब स्पीशीज़ जापोनिका, उसकी जो लेंथ ऑफ द ग्रेन्स है वो आप देख सकते हैं कि वो क्या है, उसकी लेंथ छोटी है और विड्थ बड़ा है. ओके, और जो नीचे जो पिक्चर है वो है ओराइजा सटाइवा सब स्पीशीज़ इंडिका. इसकी क्या है? लेंथ बड़ी है एंड विड्थ छोटी है. ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टडी ओराइजा ग्लैबरिमा, जिसे हम अफ्रीकन राइस कहते हैं. अफ्रीकन राइस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अफ्रीका में मेनली ग्रो की जाती है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड हम कौन सी राइस ग्रो करते हैं? इंडिका राइस. ओके, इंडिका मीन सॉरी सटाइवा, ओराइजा सटाइवा हम ग्रो करते हैं, एशियन राइस ग्रो करते हैं. एंड ओराइजा ग्लैबरिमा ग्रोन ओनली इन द वेस्ट अफ्रीका इन द वर्ल्ड, एंड शॉर्ट एंड ग्राउंडेड लेग्यूल्स होते हैं. ग्लैबरस, लेमा एंड पैलिया होता है. हम लेमा पैलिया सब कुछ आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे. एंड इट्स प्रोन टू लॉजिंग, मतलब कि लॉजिंग के लिए बहुत ससेप्टेबल होता है. ओके, यहाँ पे शैटरिंग इन पैनिकल. शैटरिंग मतलब कि
हार्वेस्टिंग करने से पहले जो इसके पैनिकल्स हैं वो टूट टूट कर गिरने लगते हैं। ओके, सो ये क्या होगा, ये हमारे लिए सही नहीं, ये प्रोडक्शन के लिए सही नहीं है। मतलब कि एट लास्ट अगर हमारी फील्ड पे ही सारा हमारा जो ग्रेन है, पैनिकल है, वो गिर जाएगा तो हम हार्वेस्ट क्या करेंगे। ओके, सो प्रोडक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा यील्ड डाउन हो जा रही है, तो ये एक निगेटिव क्वालिटी है। सो एंड CG14 इज़ द वेराइटी ऑफ अफ्रीकन राइस, एंड यहाँ पे मैंने अफ्रीकन राइस लगाई है। सो इट इज़ मेनली ग्रोन इन अफ्रीका। सो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है, या थैंक यू। एंड आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है, राइस का पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ा है, एंड सारी डिटेल्स पढ़ी हैं, और हमने कल्टिवेटेड स्पीशीज़ पढ़ी हैं राइस की। ओके, आगे के लेक्चर्स में हम एक एक स्टेप आगे जाएंगे, हर एक चीज़ आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी प्रॉपरली। और या सो थैंक यू फॉर टुडे। एंड इसका जो लेक्चर नोट्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और कोई भी आप सजेशन देना चाहें तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करें, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच।